کرتے ہیں اپنی زندگی کو مشکل بنا، ویسے بڑی مشکل ہے، پھر بھی ہم نے اپنے کو مان کے چلنا ہے نا. ہمیں پتا ہے فلانا مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں نفرت ہے، منہ میں جو بھی ہے، ہم یہ نہ مجھے پتا ہے اس نے ہمیشہ میرا برا چاہا ہے، نہیں بھائی چھوڑو اس کو، بس میں اس کو نہیں دیکھ سکتی، میرے یہ متھے نہ لگے. دیکھو دین میں کیسی بات ہے، اسلام کی بات ہے، کافر لوگ ہیں، نقصان دینے میں پیچھے نہیں ہے، مگر اے نبی اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تم بھی صلح ہی رکھو، اللہ پہ توکل کرو نا. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم کتنی مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ تزکیے کے طور پہ اپنا سبریہ لیں، بہت رشتوں سے ہم سے اس لیے نہیں ملتے، ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمارا برا چاہتے ہیں، جادو کرنے آئے ہوئے ہیں گھر میں، یا نظر لگانی ہے انہوں نے، یا ادھر کی بات ادھر کرنی ہے. تو بس اس سے بہتر یہی ہے کہ دور ہی رہیں. بغانوں کے ساتھ بڑی دوستی ہے، ہر انسان کے ساتھ دوستی رکھنا اچھی چیز ہے، مگر رشتوں کے ساتھ دوستی کرنا، جھکنا ملنا ڈبل اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن مومن ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح رکھے، محبت رکھے، عاجزی رکھے، اس کی خدمت میں، مدد اور محبت میں کبھی پیچھے نہ رہے. یہ حدیث ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، ہم خود ہی سننے جاننے والے ہیں سارا. ہم نے سب کا دل جان لیا، دل تو کوئی نہیں جانتا نا. کیا پتا آپ کا گمان ہی ہو، کیونکہ قرآن میں اینڈ والے سوالوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ بہت سے گمان ہی ہیں تمہارے اور غلط ہی ہیں. اپنے گمان کے پیچھے نہ چلو، گمان تمہیں بگاڑ دیں گے، تمہیں نقصان دیں گے. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، شیطان آتا ہی گمان پہ ہے. شیطان ایسے تھوڑی ہے کہ ہمارے سامنے آ جائے گا، شیطان ایسا تھوڑی ہے کہ نماز پڑھنے لگیں گے تو بٹا اتار دے گا، وضو کرنے لگیں گے تو نل بند کر دے گا، گاؤن پہن کے ہم سڑک سے نکلے تو سڑک پہ آ کے ہمارا گاؤن کھول دے گا. ایسے کر سکتا ہے وہ؟ بس وہ گمان ہی ڈالتا ہے، ذہن میں آتا ہے. تو وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے. اور آپ خود بھی دیکھیں گے قیامت کے دن بڑی بڑی سٹوریاں، بڑی بڑی کہانیاں جو آپ کے دل و دماغ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں نا، وہ سوائے خیال اور گمان کے کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے پیچھے نہ چلو، سنا رہے. اور اگر وہ چاہیں تمہیں دھوکہ دینے کا، اللہ کافی ہے. کتنی پیاری آیات ہے، اے یکفروک، وہ چاہتے ہیں، ان کے ارادے پکے ہیں کہ تمہیں دھوکہ ہی دینا ہے، تمہیں نقصان ہی دینا ہے. تو یہ آیت کتنی پیاری ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہے. اللہ پہ اعتبار کر کے، یقین کر کے اپنی عبادتیں پوری کرو. جیسے 5 نمازیں پوری کرتے ہو، ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہے، اسی طرح یہ بھی ایک عبادت ہے. اپنے اللہ کی خاطر اپنے رشتوں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا. اور جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد اور مسلمانوں کی مدد پہ، الفت ڈال دی اس نے تمہارے درمیان، اگر تم خرچ کرتے زمین کا سارا کچھ بھی، تم ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. یہ تو اللہ نے محبتیں ڈال دی، محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں. ہر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے. میں ثبوت دے دیا، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں، دادی، نانی، خالہ، پھپھو سب کو خوشی ہے. اس کے بعد میں پھپھو بری کیوں ہو گئی؟ کیوں ہوگی پھپھو بری؟ اللہ نے محبت ڈالی تھی. آپ کا گمان ہے شیطانی وسوسے ہیں، شیطان نہیں کام. اسی طرح ایک ساس بیاہ کے لے کے آئی اپنی بہو، محبت سے بیاہ کے لے کے آئی ہے کہ نفرت سے؟ تو بعد میں نفرت کیسے آ گئی؟ آپ کا گمان ہے جو قدم قدم پہ اس نے ڈالا ہے آپ کے دل میں. نفرت ہے نہیں، محبت ہی تھی. آپ نے اپنی محبت کو خود ختم کیا، پردے ڈالنے ہیں شیطان نے جو آپ کو دیے. اسی طرح کوئی بھی آپ رشتہ لے آئے، اس میں ہوتی محبت ہی ہے. ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے. اللہ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہمارے گمان جھوٹے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہے نا، فلانے ٹائم پہ اس نے ایسا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ ساری سوچ شیطان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور الفت ڈال دی اللہ نے ہی دلوں میں. اللہ تو نبی سے کہہ رہے ہیں، جبکہ نبی رحمت للعالمین دونوں جہانوں میں بادشاہ نر، چہرہ دیکھ کے ہی ایک عورت نے کہہ دیا تھا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر وہ نا آپ کو رقم دے مجھ سے لے لینا. ساتھیوں نے پوچھا اماں جی آپ جانتے ہو اس کو؟ کہتی جانتی تو میں نہیں ہوں. اتنا خوبصورت محبت بھرا چہرہ تھا، عاجزی تھی، چہرے سے ہی محبت ٹپکتی تھی. ہمیں بھی یہی حکم ہے، اپنا ماتھا کشادہ رکھو. ہے حکم کی نہیں؟ بہترین صدقہ کیا ہے؟ مسکرانا. خرچ کرے بھی کوئی معاملہ، اللہ نے پہلے محبت ڈال دی. اور اگر تم خرچ کرتے ساری دنیا کا مال بھی نہیں ڈال سکتے تو تم ان کے دل میں محبت، لیکن اللہ نے ڈال دی. بڑا خوبصورت ہے، ما اللہ
अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अगर ये आयत बड़ा खुश कर देने वाली है मुझे और आपको। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। आज तो आपके सबक में यही सबक है बार बार, अल्लाह तुम्हें काफी है, अल्लाह तुम्हें काफी है, अल्लाह तुम्हारे लिए है। देखो ना अल्लाह आपको कहते हैं अल्लाह आपको काफी है कि किस चीज़ का गम है, किस चीज़ का दुख है, किस चीज़ की कमजोरी है, किस चीज़ की परेशानियां हैं। चलो वो इंसान लाओ अपनी नजर जो आपको मुझे वो कह दे आप कैसे जन्नत का मकान बेच दे जगह मैंने जब भी आज तो आपने जाना था हाँ जी फेस नहीं आया। अब यहाँ आप गौर करें कि आप आपका शोहर है, अभी इस वक्त आपको आपका आपको कि मैं तेरे लिए बस मैं काफ़ी आप कैसे कैसे हमारे यहाँ अजीम माएँ बैठी हैं, उनका बड़ा बेटा जवान और बहू एक दूसरे का एक हाथ दूसरा हाथ दूसरे के अम्मी जी हम हैं, कोई परेशानी नहीं ले लिए। चलो अब ज़रा सा अंदाज़ा लगाओ वो बहन जिसका कर दें सब। अब आओगे अल्लाह का सुनना, अल्लाह आपको कहते हैं अल्लाह तुझे काफ़ी, तेरा अल्लाह तुझे काफ़ी, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं, वाकई हमें नहीं किसी की ज़रूरत, हमारी है किसी की हमें नहीं। यही आप देर में रखें कि मैंने ही किसी की खिदमत करनी है, मैंने लेनी नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। और पैरवी करो फिर मोमिनो अल्लाह की, तरगीब दिलाओ मोमिनों को, जिहाद करे वो अल्लाह के रास्ते में। अगर होंगे तुम में से कोई 20 वो आ जाएंगे गालिब 200 पर। आप एक नहीं हो, मुसलमान एक नहीं होता है, पूरी जमात होता है, गालिब होता है, गलबा होता है, जीत उसी की होती है। अगर आप ये सोचो ना कि अपने खानदानों में आज आपने जो पढ़ा है कि हमारा खानदान जैसे कुरान से दूर है, दुनिया बहुत अंदर है, बताएं यही बात नहीं है, सच कह रही हूँ ना मैं, ऐसे है ना, तो आप एक नहीं है, आपकी ताकत कितनी है, जितने आपके लोग हैं ना उससे कई 100 गुना, 20 200 पर, 100 1000 पर, 1000 लाखों में जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखना यहाँ बात खत्म नहीं होगी। अब ये फरिश्ते सिर्फ उस जंग में उतरे थे, मैंने सबसे पहले आपको पूरा पस मंजर उस वाक्य का सुनाया था ना, अभी रात को ही नबी ने देखा था, जिब्राइल ने कहा था अल्लाह के नबी फरिश्ते तो सफदर सब पहले खड़े हो गए हैं उस जगह पे जाके, और जगह भी बता दी थी जहाँ जहाँ काफिर ने इस दुनिया से सालों से पहले गलबा बता दिया गया था। तो जीत तो मुसलमानों मेरी और आपकी है, हमने जीतना है। अब ये ना कहना मैं कमजोर हूँ, मैं क्या काम कर लूंगी, मेरी किसने सुन ली है। अगर आप एक हैं, आप लाखों में हजारों में आप गलबा पाने वाले हैं। देखो मैं नहीं निकली, आप मिले मुझे कि नहीं मिले, बताए मुझे मिले कि नहीं मिले। मैं आपको जानती थी, आप मुझे जानते थे, कैसे आपने रुकू के रुकू पढ़ लिए, कैसे हमारा 10वां पारा शुरू हो गया। इसके अलावा कितने लेक्चर्स भी हमने लिए, या नहीं अल्लाह की मदद। और फिर आप यहाँ बैठे हो, अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते में आ जाता है, फरिश्ता उसकी मदद में आपके लिए फरिश्ते मदद करें। 2 फरिश्ते आपके बारे में रहना, वही दुआ करते हैं अल्लाह इसको, इसके वालिदैन को, इसके शोहर को, इसके बच्चों को, इसके बहन भाइयों को जन्नत में इकट्ठा कर। एंड वाले अस्पारों में आपने जाके पढ़ना है ये, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल, अल्लाह ने माफ कर। तो फरिश्ते को किसने हुक्म दिया, ये दुआ करने का किसने हुक्म दिया है, अल्लाह ने। और फिर इसके अलावा अब जब आप बैठे हो, आपके नीचे किसके पर बिछाए हैं, किसके दरवाजे खुले हैं, अल्लाह अर्श पे बैठे किसका जिक्र कर रहे हैं, आप। किसके लिए जन्नत के वादे हो गए हैं, जहन्नम खत्म, अगर नाम भी है तो खत्म कर दिया, खारिज कर दिया उसका नाम, तो गलबा आपको आज दे रहा है। इस बात को विरोध ना करना, आपने ताकतें गायबानियां हैं, जैसे कहते हैं ना, पता नहीं इसके पीछे क्या ताकत है, आपके पीछे अल्लाह के भेजे हुए की ताकत है, इसलिए आपकी मदद करेंगे। आप बीमार होंगे, इयादत करेंगे, आप किसी काम में मसरूफ होंगे, बुखारी के हदीस है ये, आपकी मदद करेंगे। और अगर आपने कोई काम छोड़ा वैसे ही, फिर वो क्या करेंगे, लानत डालेंगे। इस बात को इजाजत है। अब काम आपकी वही होंगे, खाना पकाना, बच्चे, जिम्मेदारियाँ, खुशी, गम, मगर आप अपने वक्त में, अपनी सेहत में, अपने माल में बरकत देखेंगे कि वाकई अल्लाह के रास्ते में आने के बाद अल्लाह ने मुझे बाकी कितनी ताकतें दी। सबक समझ आ गया आज का, कोई बात जो आपको
की लगे। अगर वो झुके सुलह की तरफ, सुलह करें। अब यहाँ किनकी बात हो रही है? नबी के दौर के वो लोग जो इस्लाम के लिए नहीं है, मगर चूंकि इस्लाम में कोई फायदा है तो सुलह करें। अब यहाँ हमें इस बात का सबक मिलता है कि वो लोग जिन्हें ये पता है ना कि इसके दिल में मैल है, ये मेरा बुरा चाहता है, मैं भी जादू करने आया हो, गंदी नजर मारने आया हो, तो तुम फिर भी बज़ाहिर उसके लिए सुलह करो। ये हमें सबक है। हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना, वैसे बड़ी मुश्किल है, फिर भी हमने अपने को मान के चलना है ना। हमें पता है फलाना मुझसे नफरत करता है, उसके दिल में नफरत है, मुंह में जो भी है, हम ये ना मुझे पता है इसने हमेशा मेरा बुरा चाहा है, नहीं भाई छोड़ो इसको, बस मैं इसको नहीं देख सकती, मेरे ये मत्थे ना लगे। देखो दीन में कैसी बात है, इस्लाम की बात है, काफर लोग हैं, नुकसान देने में पीछे नहीं है, मगर आए नबी अगर वो सुलह करना चाहते हैं तुम भी सुलह ही रखो। अल्लाह पे तवक्कुल करो ना, क्यों नहीं करते? हमें अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है, कितनी मर्तबा बड़ी बड़ी नेकियों से पीछे हो जाते हैं। अगर आप तज़किये के तौर पे अपना सबक लें, बहुत रिश्तों से हमसे इसलिए नहीं मिलते, हमें ये पता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, हमारा बुरा चाहते हैं, जादू करने आए हुए हैं घर में, या नजर लगानी है इन्होंने, या इधर की बात उधर करनी है, तो बस इससे बेहतर यही है कि दूर ही रहें। बगानों के साथ बड़ी दोस्ती है, हर इंसान के साथ दोस्ती रखना अच्छी चीज़ है, मगर रिश्तों के साथ दोस्ती करना, झुकना मिलना डबल अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन मोमिन एक दूसरे का भाई होता है, और उसे चाहिए कि वो अपने भाई के साथ सुलह रखे, मोहब्बत रखे, आजिज़ी रखे, उसकी खिदमत में, मदद और मोहब्बत में कभी पीछे ना रहे। ये हदीस है, हुक्म है अल्लाह ताला का। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, हम खुद ही सुनने जानने वाले हैं सारा। हमने सबका दिल जान लिया, दिल तो कोई नहीं जानता, क्या पता आपका गुमान ही हो, क्योंकि कुरान में एंड वाले सुराह में आपने पढ़ा है कि बहुत से गुमान ही है तुम्हारे और गलत ही है। अपने गुमान के पीछे ना चलो, गुमान तुम्हें बिगाड़ देंगे, तुम्हें नुकसान देंगे। शैतान तो चाहता ही यही है, शैतान आते ही गुमान पे है। शैतान ऐसे थोड़ी है कि हमारे सामने आ जाएगा, शैतान ऐसा थोड़ी है कि नमाज पढ़ने लगेंगे तो बट्टा उतार देगा, वुज़ू करने लगेंगे तो नल बंद कर देगा, गाउन पहन के हम सड़क से निकले तो सड़क पे आके हमारा गाउन खोल देगा, ऐसे कर सकता है वो? बस वो गुमान ही डालता है, ज़हन में आता है, तो वो शैतान की तरफ से हो सकता है। और आप खुद भी देखेंगे क़यामत के दिन बड़ी बड़ी स्टोरियाँ, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो आपके दिलो दिमाग ने अपने बहन भाइयों के लिए बनाई हुई है ना, वो सवाए ख्याल और गुमान के कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह ने मना किया है, उसके पीछे ना चलो, सुना रहे। और अगर वो चाहे तुम्हें धोखा देने का, अल्लाह काफी है। कितनी प्यारी आयत है, वो चाहते हैं, उनके इरादे पक्के हैं कि तुम्हें धोखा ही देना है, तुम्हें नुकसान ही देना है। तो ये आयत नहीं, ये आयत कितनी प्यारी है, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, अल्लाह तुम्हें काफी है। अल्लाह पे एतबार करके, यकीन करके अपनी इबादतें पूरी करो। जैसे 5 नमाज़ें पूरी करते हो, एक नमाज छोड़ने वाला भी काफर है, इसी तरह ये भी एक इबादत है, अपने अल्लाह की खातिर अपने रिश्तों के साथ सही सलूक करना। और जिसने तुम्हें जोर दिया अपनी मदद और मुसलमानों की मदद पे, उल्फत डाली उसने तुम्हारे दरमियान, अगर तुम खर्च करते ज़मीन का सारा कुछ भी, तुम उनके दिलों में जगह नहीं बना सकते। ये तो अल्लाह ने मोहब्बतें डाल दी, मोहब्बतें अल्लाह ने डाली हुई हैं। हर इंसान के दिल में मोहब्बत होती है। मैं सबूत दे दिया, बच्चा पैदा होता है ना, माँ, दादी, नानी, खाला, फुफ्फो, सबको खुशी है। इसके बाद में फुफ्फो बुरी क्यों हो गई? क्यों होगी फुफ्फो बुरी? अल्लाह ने मोहब्बत डाली थी। आपका गुमान है, शैतानी वसवसे हैं, शैतानी काम है। इसी तरह एक सास ब्याह के लिए आई अपनी बहू, मोहब्बत से ब्याह के लिए आई है कि नफरत से? तो बाद में नफरत कैसे आ गई? आपका गुमान है जो कदम कदम पे उसने डाला है आपके दिल में, नफरत है नहीं, मोहब्बत ही थी। आपने अपनी मोहब्बत को खुद खत्म किया, पर्दे डाले हैं शैतान ने जो आपको दिए। इसी तरह कोई भी आप रिश्ता ले आए, उसमें होती मोहब्बत ही। हर एक के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली हुई है। अल्लाह सच्चे हैं, हम झूठे हैं, हमारे गुमान झूठे हैं। छोटी मोटी चीजें जो हमारे सामने आती रहती है ना, फलाने टाइम पे उसने ऐसा ये किया, ये किया, ये किया, ये सारी सोच शैतान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं है। और उल्फत डाल दी अल्लाह ने ही दिलों में। अल्लाह तो नबी से कह रहे हैं, जबकि नबी रहमत लिल आलमीन, दोनों जहानों में बादशाह नर, चेहरा देख के ही एक औरत ने कह दिया था, चेहरा झूठ नहीं बोल सकता, अगर वो ना आपको रकम दे मुझसे ले लेना। साथियों ने पूछा, अम्मा जी आप जानते हो उसको? कहती जानती तो मैं नहीं हूँ। इतना खूबसूरत मोहब्बत भरा चेहरा था, आजी थी,
चेहरे से ही मोहब्बत टपकती थी। हमें भी यही हुक्म है, अपना अपना माथा कुशादा रखे। है हुक्म की नहीं? बेहतरीन सदका क्या है? मुस्कुराना। खर्च करे भी कोई माल अल्लाह ने पहले मोहब्बत डाल दी, और अगर तुम खर्च करते सारी दुनिया का माल भी नहीं डाल सकते तो तुमके दिल में मोहब्बत, लेकिन अल्लाह ने डाल दी। बड़ा खूबसूरत है, माँ अल्लाफ्ता बैना कुलूबिहिम अल्लाफ्ता बैना कुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अगर ये आयत बड़ा खुश कर देने वाली है मुझे और आपको। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। आज तो आपके सबक में यही सबक है, बार बार अल्लाह तुम्हें काफी है, अल्लाह तुम्हें काफी है, अल्लाह तुम्हारे लिए है। देखो ना, अल्लाह आपको कह रहे हैं अल्लाह आपको काफी है कि किस चीज का गम है, किस चीज का दुख है, किस चीज की कमजोरी है, किस चीज की परेशानियां हैं। चलो वो इंसान लाओ अपनी नजर जो आपको मुझे वो कह दे आप कैसे हाँ जी, फेस नहीं आया। अब यहाँ आप गौर करें कि आप आपका शोहर है, अभी इस वक्त आपको आपका करके गए मैं तेरे लिए बस मैं काफी आप कैसे कैसे हमारे यहाँ अजीम माएँ बैठी हैं, उनका बड़ा बेटा जवान और बहू एक दूसरे का एक हाथ दूसरा हाथ दूसरे के अम्मी जी हम हैं, कोई परेशानी नहीं रही। क्लियर? चलो अब जरा सा अंदाजा लगाओ वो बहन जिसका कर दें सब। अब आप अपने अल्लाह को सुनो, अल्लाह आपको कहते हैं हंस अल्लाह तुझे काफी, तेरा अल्लाह तुझे काफी, तुझे किसी की जरूरत नहीं। वाकई हमें नहीं किसी की जरूरत, हमारी या किसी की हमें नहीं। यही आप देर में रखें कि मैंने नहीं किसी की खिदमत करनी है, मैंने लेनी नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। और पैरवी करो फिर मोमिनो अल्लाह की, नबी तरगीब दिलाओ मोमिनों को, जिहाद करे वो अल्लाह के रास्ते में। अगर होंगे तुम में से कोई 20 वो आ जाएंगे गालिब 200 पर। आप एक नहीं हो, मुसलमान एक नहीं होता है, पूरी जमात होता है, गालिब होता है, गलबा होता है, जीत उसी की होती है। अगर आप ये सोचो ना कि अपने खानदानों में आज आपने जो पढ़ा है कि हमारा खानदान जैसे कुरान से दूर है, दुनिया बहुत अंदर है, बताएं यही बात नहीं है? सच कह रही हूँ ना मैं, ऐसे है ना, तो आप एक नहीं है। आपकी ताकत कितनी है? जितने आपके लोग हैं ना उससे कई 100 गुना। 20 200 पर, 100 1000 पर, 1000 लाखों में जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखते यहाँ बात खत्म नहीं होगी। अब ये फरिश्ते सिर्फ उस जंग में उतरे थे। मैंने सबसे पहले आपको पूरा पस मंजर उस वाक्य का सुनाया था ना, इसलिए अभी रात को ही नबी ने देखा था, जिब्राइल ने कहा था अल्लाह के नबी फरिश्ते तो सब पहले खड़े हो गए हैं उस जगह पे जाके, और जगह भी बता दी थी जहाँ जहाँ काफिर ने इस दुनिया से वसाल हो जाए पहले गलबा बता दिया गया था। तो जीत तो मुसलमानों मेरी और आपकी है, हमने जीतना है। अब ये ना कहना मैं कमजोर हूँ, मैं क्या काम कर लूंगी, मेरी किसने सुननी है? अगर आप एक हैं, आप लाखों में हजारों में आप गलबा पाने वाले हैं। देखो मैं नहीं निकली, आप मिले मुझे कि नहीं मिले, बताए मुझे मिले या नहीं मिले? मैं आपको जानती थी, आप मुझे जानते थे, कैसे आपने रुकू के रुकू पढ़ लिए, कैसे हमारा 10वां पारा शुरू हो गया। इसके अलावा कितने लेक्चर्स भी हमने लिए, क्या नहीं अल्लाह की मदद। और फिर आप यहाँ बैठे हो, अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते में आ जाता है, फरिश्ता उसकी मदद में आपके लिए फरिश्ते मदद करें। 2 फरिश्ते हाथ उठाए हुए ना, वही दुआ करते हैं अल्लाह इसको, इसके वालिदैन को, इसके शोहर को, इसके बच्चों को, इसके बहन भाइयों को जन्नत में इकट्ठा कर। एंड वाले सवारों में आपने जाके पढ़ना है ये, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल लेंगे, माफ कर। तो फरिश्ते को किसने हुक्म दिया है? ये दुआ करने का किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। और फिर इसके अलावा अब जब आप बैठे हो, आपके नीचे किसने पर बिछाए हैं? किसके दरवाजे खुले हैं? अल्लाह आज पे बैठे किसका जिक्र कर रहे हैं? आपका। किसके लिए जन्नत के वादे हो गए हैं? जहन्नम खत्म, अगर नाम भी है तो खत्म कर दिया, खारिज कर दिया उसका नाम, तो गलबा आपको आज दे रहा है। इस बात को इग्नोर ना करना। आप में ताकतें गायबानियां हैं, जैसे कहते हैं ना, पता नहीं इसके पीछे क्या ताकत है। आपके पीछे अल्लाह के भेजे हुए की ताकत है, इसलिए आपकी मदद करेंगे।
آپ بیمار ہوں گے عیادت کریں گے, آپ کسی کام میں مصروف ہوں گے, بخاری کی حدیث ہے یہ, آپ کی مدد کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی کام چھوڑا ویسے ہی, پھر وہ کیا کریں گے, لعنت ڈالیں گے. اس بات ہوتا ہے کہ عادت رکھنا. اب کام آپ کے وہی ہوں گے, کھانا پکانا, بچے, ذمہ داریاں, خوشی غم, مگر آپ اپنے وقت میں, اپنی صحت میں, اپنے مال میں برکت دیکھیں گے کہ واقعی اللہ کے راستے میں آنے کے بعد اللہ نے مجھے باقی کتنی طاقتیں دی. سبق سمجھ آ گیا آج کا؟ کوئی بات جو آپ کو مشکل لگے؟